today we are going to start with chapter number 16, Parliament and the Making of Laws. In this chapter, we will study about the Parliament. Parliament का काम क्या होता है? ये law बनाता है, law को execute करता है और हमें क्या देता है? Why should people decide the role of Parliament and how are new laws formed? और हम कुछ unpopular और controversial laws के बारे में पढ़ें. India is a democratic country whereby citizens participate in decision-making process of the government by electing their representatives. This chapter focuses on understanding the relationship between notion of participation in decision-making and need for various democratic government to obtain consent of the citizen. This chapter looks like into the process of which Parliament enables a citizen to participate in the decision-making process and controlling the government, and thus making it most important symbol of Indian democracy and the main features of the Constitution of India. ठीक है, पार्लियामेंट जो हमारा है वो ये बताता है, वो इनेबल करता है सिटीजन को कि वो पार्टिसिपेट करे इन द डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ इंडिया के डिसीजंस में, और वो क्या करता है? कंट्रोल करता है गवर्नमेंट को बाय मेकिंग इट्स इम्पोर्टेंस इन द सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. व्हाई शुड पीपल डिसाइड? इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 August 1947 after a long and difficult struggle which witnessed the participation of various sections of society. इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 15 August 1947 को आफ्टर अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल, जिसने क्या विटनेस करा? पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी. पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड जॉइन द स्ट्रगल बीइंग इंस्पायर्ड बाय द इंडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. ठीक है, जो पीपल है हमारे वेरियस बैकग्राउंड के, उन्होंने ज्वाइन करा स्ट्रगल को और वो इससे इंस्पायर्ड हुए आइडिया ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ऑफ रिलीजन, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग. Under a colonial rule, people have lived in fear of British government and did not agree with many of their decisions. But they faced grave oppression if they tried to criticize. The freedom of movement changed the scenario and the nationalists जो थे उन्होंने start करा openly criticizing the British government. ठीक है, लोगों ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करा एंड मेकिंग सच डिमांड्स. ठीक है, उन्होंने डिमांड्स करी. इन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड देयर बी इलेक्टेड मेंबर इन द लेजिस्लेटिव विद द राइट टू डिस्कस द बजट्स एंड पुट अप द क्वेश्चन. 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करी कि उन्हें मेंबर्स को इलेक्ट करना है लेजिस्लेचर में और राइट होना चाहिए टू डिस्कस द बजट एंड पुट अप द क्वेश्चन. Government of India Act 1990 allowed some elective representation, while these early legislature under the British government were in response to increasing demands of nationalism. और ये नहीं चाहते थे कि जो adults हैं वो वोट करें and not good people participate in the process of decision making. कि लोग भी ये decision making का process है उसमें part ना लें. The experience of colonial rules as well as participation of different people in the struggle for freedom made nationalists realize that all the person in independent India were capable of participating in the process of decision making. कि independent India का कोई भी इंसान हो तब किसमें पार्ट लेंगे? in the decision making. With the coming independence, we were going to be the citizen of free country, and they did not mean that the government could do what it felt. It implied that the government had to be responsible and sensitive to people needs and demands. कि government responsible है of the sensitive needs and demands of the people. ये नहीं है गवर्नमेंट जो चाहेगी वो वैसा करेगी, ऐसा नहीं होगा. The dreams and aspiration of the freedom struggles were made concrete in the Constitution of Independent India. और उन्होंने प्रिंसिपल ले डाउन करा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कि जो हर एक एडल्ट सिटीजन है उसके पास राइट है टू वोट. ठीक है, नाउ पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव. तो की ऑफ डेमोक्रेसी इज नोशन ऑफ कंसेंट, the desire, approval and participation of the people. In the decision of people that forms a democratic government decides about its functioning. और जो basic idea है in this type of democracy is that individual or the citizen is most important person. ठीक है, and that in principle कि जो government है as well as the public institution need to have true and consent to these citizens. चाहे वो government है चाहे वो public institution है, सबके अंदर क्या होना चाहिए? faith होना चाहिए. On one way in which individual gives approval to the government is through election. People would elect their representative to the parliament and one group from among these elected representatives form government.
Parliament, which is constituted of all representatives together, controls and directs rule. In this sense, people through their chosen representative, जो लोग हैं जो अपने chosen representative को चूज करते हैं, वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है और उसको कंट्रोल. ठीक है. The role of government. Created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith and that the people of India have in the principle of democracy. जो इनका पार्टिसिपेशन है पीपल का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और गवर्नमेंट का, वो उसके कंसेंट से है. और जो पार्लियामेंट है इन आवर सिस्टम हैज इमेंस पावर बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन सिमिलर मैनर एज द स्टेट लेजिस्लेचर. जैसे इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर में होते थे ऐसे ही आपके पार्लियामेंट में होंगे. और जो लोकसभा है उसको इलेक्ट करा जाएगा 5 years के लिए. एंड फॉर दीज इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसी. और इस इलेक्शन के लिए आपके रीजन को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करा जाएगा और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को इलेक्ट करा जाएगा 1% हुआ बाय 1. ठीक है. कैंडिडेट हु ए कंटेक्स्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू पॉलिटिकल पार्टी. अब हम अंडरस्टैंड करेंगे. देखो ये रिजल्ट है आपका 17 लोकसभा इलेक्शन का, मई 2019. भारतीय जनता पार्टी को इसमें 303 एमपीज हैं. INC के हस्ते 2 DMK, दैट इज रविंद्र मुकेश कजा खान 24. ये आपको रिजल्ट दिए हुए, आप इसको एक बार रीड कर लेंगे. ठीक है. आपको रिजल्ट दे रखे हैं यहाँ पे. आपको 15 लोकसभा के दे रखे हैं जिसमें BSP के सबसे ज्यादा थे. Once elected, these candidates become member of parliament. और जो MPs होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? पार्लियामेंट. After the election to the parliament has taken place, parliament has to perform following function. जो कैंडिडेट्स के मेंबर बन जाते हैं उनको MPs कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है. और फिर कुछ फंक्शन से परफॉर्म करते हैं जैसे टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा. ठीक है. आपके पार्लियामेंट में हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा होती है और राज्यसभा. 2 हाउसेज होता है, लोकसभा और राज्यसभा. After the Lok Sabha election, list is prepared which provide information about the number of MPs belonging to each political party. For a political party to form the government, they should have majority of elected MPs. अगर इन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर दिया तो इनके पास मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड MPs होने चाहिए. 543 elected plus 2 Anglo-Indian national nominated in Lok Sabha. In order to have majority, a party should have at least half this number. मतलब आपके पास 272 मेंबर्स या इससे ज्यादा होने चाहिए. द अपोजिशन इन द पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय ओनली दोज पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ मेजॉरिटी पार्टी. अपोजिशन खाली वो ही करते हैं जिनके पास पूरी उनकी पार्टी का बहुमत नहीं होता. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू सेलेक्ट एग्जीक्यूटिव. सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है लोकसभा का वो क्या होता है? उन्हें सेलेक्ट करना पड़ता है अपना एग्जीक्यूटिव. और जो एग्जीक्यूटिव होता है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्सन जो वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट लॉज मेड बाय पार्लियामेंट. और जो एग्जीक्यूटिव का सिनोनियम क्या होता है? आपकी गवर्नमेंट. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा. और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं मिनिस्टर्स को फ्रॉम अमंग द MPs हु बिलोंग टू दिस पार्टी इन ऑर्डर टू वर्क विद हर इम्प्लीमेंट डिसीजन. एंड दिस मिनिस्टर टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. और जो ये मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स इन मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करते हैं among the different MPs. ठीक है. और ये जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बनते हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो, एजुकेशन हो और फाइनेंस. Many times in the past it has been difficult for a single political party to obtain the majority. Then they join hands together with different political party with similar views to form what is known as coalition government. और जो राज्यसभा का है उसका मेन फंक्शन क्या है? उसका मेन फंक्शन है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया पार्लियामेंट. और राज्यसभा वो इनिशिएट करती है लेजिस्लेचर को और बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू राज्यसभा टू बिकम अ लॉ. अगर आपको किसी बिल को लॉ बनाना है तो इसको राज्यसभा से भी पास करना पड़ेगा. देयरफॉर हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिवाइविंग एंड अल्टरिंग द लॉ इनिशिएटेड बाय लोकसभा. जो मेंबर है राज्यसभा उनको इलेक्ट करा जाता है एज इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. और यहाँ पे 233 इलेक्टेड मेंबर हैं और प्लस 12 नॉमिनेटेड है बाय द प्रेसिडेंट. उन 12 को कौन नॉमिनेट करते हैं? हमारे
president nominated. To control, guide and inform the government. इनका काम क्या होता है पार्लियामेंट का? ये गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, इन्फॉर्म करता है और गाइड करता है. ठीक है. द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बिगिन विद द क्वेश्चन आवर, और जो क्वेश्चन आवर है वो इंपॉर्टेंट मैकेनिकल है, जिससे जो एमपीज हैं अपनी डिमांड को क्या रखते हैं, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. ये इंपॉर्टेंट वे है थ्रू विच पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव. बाय आस्किंग द क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज टोल्ड अबाउट शॉर्टकमिंग एंड इट ऑल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल. ये इससे लोगों का ओपिनियन भी जान पाता है. ठीक है. एंड आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर एवरी एमपी. अपोजिशन पार्टी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी. जो अपोजिशन पार्टी है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी. ये हाईलाइट करते हैं ड्रॉबैक इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, और क्या मोबिलाइज करती है पॉपुलर सपोर्ट्स ऑफ देयर ओन पॉलिसीज. The government gets important feedback and check out on its power imposed by the question asked in the MP. Moreover, obtaining the parliament approval in all matters dealing with finance is a crucial for government. This is on the several way to in which parliament controls. Parliament का काम क्या होता है? वो कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है और इंफॉर्मेशन देता है गवर्नमेंट. ठीक है. Now, MPs as representative of the people have pivot role in controlling, directing and informing the parliament. और ये क्या है? इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स है ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स है आपके डेमोक्रेसी के फंक्शन. नाउ हाउ आर न्यू लॉज फॉर्म? अब मैं आपको बताऊंगी कि नए नए जो लॉज होते हैं वो हमारे कैसे फॉर्म. जो पार्लियामेंट है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेकिंग लॉ. देयर आर मैनी वेज थ्रू विच टेक प्लेस एंड इट इज ऑफ्टन डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी देयर इज द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर. A major role of parliament is to sensitive towards the problem faced by problem. और जो मेन रोल होता है पार्लियामेंट का क्या होता है कि वो ज़्यादा सेंसिटिव रहे कि जो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व करने में. Let us read about the story to understand how the issue of domestic violence was brought to the attention of parliament. और क्या प्रोसेस अडॉप्ट करा गया था इस इशू को लॉ में. देखो, एक कुसुमर साजिया वो वर्क करती थी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में. दे रिमेंबर द जर्नी ऑफ हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वॉट पास. अक्टूबर 2006 की बात है. शाजिया, डिड यू रीड टुडे न्यूज़पेपर? इज इट ग्रेट डे फॉर वुमेन? वो कहती है कि शाजिया क्या तुमने आज न्यूज़पेपर पढ़ा है? ये ग्रेट डे है वुमेन्स के लिए. नॉट जस्ट अ वुमेन, violence to born will benefit everyone. It has taken such a long time to get the law passed. In fact, it began with establishing the need for a new. ठीक है, क्योंकि इस लॉ की नीड थी. Kusuma Shazia worked for a women organization and they remember one journey and how Protection of Women from Domestic Violence Act got passed. April 1991 में it's a typical day at their office. ठीक है, ये टिपिकल डे था. ये आपस में बातचीत कर रही, लॉ पास हुआ था उसके रिलेटेड. ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट करा जाता था. तो ये इस चीज़ को बताया. फिर पब्लिक हियरिंग हुई, न्यू लॉज को रेस करा गया डिफरेंट फॉरम्स पे एंड दे हैव हियर्ड टेस्टिमोनियल्स ऑफ वेरियस वुमेन. उन्होंने पढ़ा. उसके बाद 99 में लॉयर्स कलेक्टिव ग्रुप ऑफ लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट और एक्टिविस्ट, एक नेशन वाइड कंसल्टेंसेशन करा, जिससे क्या हुआ, एक बिल ड्राफ्ट किया इन्होंने, डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल, और उसको वाइडली सर्कुलेट करा. और उसके बाद जो मूवमेंट है उसने एक लॉ बनाया डोमेस्टिक वायलेंस पे, और गवर्नमेंट ने उसको पार्लियामेंट में क्या करा, इंट्रोड्यूस करा. ठीक है, और फाइनली जो बिल था वो इंट्रोड्यूस हुआ 2002 में. लेकिन बट इसमें ये बात बताया जा रहा है कि इन December 2 जो स्टैंडिंग कमिटी थी सबमिटेड द रिकमेंडेशन टू द राज्यसभा एंड दीज वर टेबल्ड इन लोकसभा. कमिटी रिपोर्ट एक्सेप्टेड डिमांड्स ऑफ द वुमेन ग्रुप. फाइनली न्यू बिल जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2005 में आफ्टर बीइंग पास्ड इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, उसको प्रेसिडेंट के बाद भेजा गया असेंट के लिए, और जो प्रोटेक्शन ऑफ और वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इफेक्ट में आया 2002. और प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू हुई और आपका जो लॉ था ये पास हो गया. As an example of last pages suggests, the citizen play a significant role in helping the parliament address different concern of people or form laws to resolve them. ये जो एग्जाम्पल आपने पढ़ा है, उन्होंने सिटीजन को आप एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा in helping the parliament to make it a law. From establishing the need for new law to being passed at every stage,
The voice of the citizen is crucial element. This voice can be heard through TV, reports, newspaper, editorial, radio broadcast, local message. ठीक है, जो फंक्शन करती है पार्लियामेंट को कि वो परफॉर्म करे ज़्यादा एक्सेसिबल एंड ट्रांसपेरेंट रहे किसके साथ, लोगों के साथ. नाउ अनपॉपुलर और कुछ कंट्रोवर्शियल लॉज. देखो कुछ लॉज होते हैं जो हमारे लिए अनपॉपुलर होते हैं और वो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं. Sometimes the parliament passes a law and turn out to be very unpopular. Sometimes a law can be constitutionally valid and hence legal. कभी कभी constitutionally valid होता है और legal होता है, लेकिन it can continue to be unpopular or unacceptable to the citizens. ठीक है, वो law unacceptable नहीं होता citizens के लिए, क्योंकि वो फील करते हैं कि जो इंटेंशन बिहाइंड, जो इसके पीछे का जो इंटेंशन है वो अनफेयर है और हार्मफुल. ठीक है, पीपल माइट क्रिटिसाइज द लॉ, होल्ड पब्लिक मीटिंग, राइट अबाउट इन न्यूज़पेपर, रिपोर्ट टू टीवी चैनल्स. इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट repressive law framed by parliament. When large number of people begin to feel that wrong law has been passed, then there is a pressure on the parliament. जब लार्ज नंबर ऑफ लोगों को लगता है कि जो लॉ पास हुआ है वो गलत होता है और वो उसके खिलाफ क्या करने लग जाते हैं, पार्लियामेंट को प्रेशर करता है कि आप उसको चेंज करो. उस प्रेशर की वजह से पार्लियामेंट को वो लॉ चेंज करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, वेरियस म्युनिसिपल लॉज ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद इन द म्युनिसिपल लिमिट्स often declare hawking an illegal vending. No one will question the necessity for some rules to keep the public space open. ठीक है. Now, however, one also cannot deny that hawkers and vendors provide essential services efficiently and at cheaper price to millions of people living in large cities. This is their means of livelihood. Hence, it is law favor one group can discard, the other will uneventually prove to be controversial and lead to disputes. People who think that law is not fair can approach the court and decide of the issue. जिसको लगता है कि लॉ फेयर नहीं है वो कोर्ट में जा सकते हैं और इशू को अपने बता सकते हैं. The court has power to modify or cancel the law if it finds that it adheres the constitution. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो पार्लियामेंट उसको मॉडिफाई भी कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है. After the discussion is this, it can be said that our role of citizen does not end with electing our representative. ऐसा नहीं है कि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर दिया उसके बाद हमारा कोई रोल नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है, rather it is then we begin to use newspaper and media to carefully take note of work that is being done by MPs और उनके एक्शंस को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं. ठीक है, हम उनके एक्शंस को क्रिटिसाइज कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि उन्होंने काम सही नहीं करा. Here it should be remembered that it is an extent, involvement and enthusiasm of the people that help the parliament to perform its representative and function in appropriate and efficient manner. उसको फंक्शन करना है appropriate और efficient manner. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिटीजन को खाली इलेक्ट करा अपने मेंबर को और छोड़ना ही, ऐसा नहीं है. उसके बाद भी वो कैसा काम कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, उस पर भी रुकावट हम कर सकते हैं और अगर वो गलत कर रहे हैं तो हम डिसीजन ले सकते हैं. ठीक है, chapter has been completed. Now we will start with the exercise of the chapter. Evaluation time, very short answer question. What was the demand raised by Indian National Congress for far back in the year 1885? क्या डिमांड थी वो बतानी है आपको. Mention one provision of Government of Indian Act और what is meant by universal adult franchise. क्या होता है इसका मैंने ये everyone adult जो कि इसकी एज 18 है और above है जिसके पास राइट है वोट करने. Write one ways in which opposition party play an important role in functioning of democracy और आपको एक मेजर एस्पेक्ट्स बताना है functioning of democracy in India. ठीक है. Now short answer type question. Give one reason why do you think universal adult franchise should be provided to all the citizens. क्यों आप ऐसा सोचते हैं. आपको 3 functions बताने हैं पार्लियामेंट के और what is question R. And next is what is meant by domestic violence. Domestic violence क्या होता है and what happens in a situation where the parliament passes law and turn out to be an unpopular. ठीक है. Now what is coalition government? गवर्नमेंट एक साथ कोलाइड कर जाती है, एक साथ मिल जाती है, उसे coalition कहते हैं. Long answer type, throw the light on which the citizen provide their consent to the policies and functioning of the government. आपको मैंने अभी पढ़ाया है, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, वो वेज लिख सकते हैं. The Indian Parliament is an expression of faith that the people of India have the principle of democracy. इसको स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन कर.
Now take the correct answer. The parliament in our system has immense power because it is the representative of the MPs. वे किसके representative? The parliamentary system immense power because it is the representative of the people. The Lok Sabha is usually elected for 5 years और जो पार्लियामेंट है उसके अंदर क्या होता है? 3 प्रेसिडेंट भी होता है हमारा, राज्यसभा भी होती है और लोकसभा. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हुई. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स.